Now we go to the other book, which is Super Accelerated Living, and Rekha is reading for us. Good morning, ma'am. Good morning, Very good everyone. morning. So you have to read from. So yesterday we had done. It would go mad. It would go crazy. So I love Bentino Mazzaro के जो words होते हैं. You'll go mad. You can create to that extent. So he's really that 26-year-old lingo. Yeah. So we have to read from. If you increase your frequency. If you increase your frequency to the God level that you already are, you will see some real changes in your life and in your ability to positively affect the course of your timeline. You will extract more benefit from the experiences you have already generated for yourself and increase the speed at which you move through your lifetime's theme of exploring a certain idea. And that is why you are here to explore, to express, to become something, to share, to learn. The more you assume yourself to be the victim of creation, the more static you will be, like ice. As you increase your frequency, it's like the molecules start heating up. They start dancing in the ice. The ice starts to melt into water, which is malleable. Similarly, when you increase your frequency, your molecules start dancing up and down with joy, with excitement, with passion, with knowing you are God, the creator of your reality and the chooser of your universe. They dance with knowing you are the eternal now, which is in total control of its next picture. You become more and more empowered to make changes, and finally, you turn into steam. Steam represents non physical consciousness, which is a much fuller remembrance of who you actually are and what you are here to do. And then you can move faster, faster, faster. Ice cannot move fast. Have you ever seen a glacier move? It's pretty slow. Have you ever seen steam move? It's pretty fast and it can go anywhere. You similarly can start to move really fast. You can learn from lessons more quickly. Why? Because you gain access to higher intelligence, to a higher form of reasoning, to a higher form of reasoning. Your mental body becomes the higher mental body. You start to understand and see things from a higher, grander perspective. Yeah, so we'll just take a pause and understand in हिंदी बेंचिनो में सारो ये बोल रहे हैं जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना दिमाग का दही जमा दिया तो वैसे वो बोल रहे हैं दिमाग का आइस जमा दिया तो कह रहे हैं हमारे दिमाग को आइस बना के नहीं रखना है जैसे जैसे आप अपनी फ्रीक्वेंसी एलिवेट करोगे और ज्यादा उस फ्यूचर प्रेजेंस में रहोगे जैसे जो भी है और उसमें इमोशंस ऐड करोगे और जॉय लव एक्साइटमेंट जो उन्हें बोला था ना कल हमको बहुत सारे वर्ड्स बताए थे जॉय लव हैप्पीनेस एक्साइटमेंट तो बोल रहे हैं कि ये जब सारे इमोशनलाइज करोगे आप अपने फ्यूचर प्रेफरेंस बोलते हैं वो फ्यूचर को तो अपने फ्यूचर प्रेजेंस को जब इमोशनलाइज करोगे तो आपके बॉडी के सेल्स विल बी डांसिंग डांसिंग विद जॉय एंड एक्साइटमेंट जो इन्होंने फिर से ये बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स यहाँ पे बोले हैं एंड देन व्हेन यू बिकम लाइक दैट when you become like that you will feel that आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इसका मतलब है ना क्योंकि आपने इमोशंस ऐड किए हैं एक्साइटमेंट लव एंड जॉय के दैट डांसिंग अप एंड डाउन विद जॉय विद एक्साइटमेंट विद पैशन विद नोइंग यू आर गॉड राइट तो बॉडी के सेल्स का एक्चुअली ऑर्बिटिंग चेंज होने लग जाता है लिटरली जिसको हम आज ही क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे थे मैजिक बुक में अभी है ना लिटरली आपके सेल्स का ऑर्बिट जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का दे स्टार्ट रनिंग अप एंड डाउन विद जॉय विद एक्साइटमेंट विद क्रेजीनेस विद पैशन एंड विथ नोइंग विथ सर्टिनिटी दैट दिस इज हैपनिंग तब वो बोल रहे हैं कि जो हमारे दिमाग में अभी आइस के रूप में था दही के रूप में था अब वो आइस मेल्ट हो रही है एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू स्टीम
और वो बोल रहे हैं कि जब आइस मेल्ट हो रही है और उसमें और ज्यादा हम फायर डाल रहे हैं, फायर डाल रहे हैं ना अपने इमोशंस के, एक्साइटमेंट के, अच्छे वाले, जॉय वाले, तो नाउ इट विल बिकम स्टीम। और जब वो स्टीम बन गई है, इसका मतलब है दैट वी आर कनेक्टेड टू द सुपर कॉन्शियसनेस, एंड नाउ वी विल सी दैट हमारी जो प्रिफर्ड रियलिटी थी वो एक्चुअली सबूत में बदलने लग जाएगी। इट विल वी विल सी द एविडेंस ऑफ दैट। सबूत का मतलब होता है हमारी फिजिकल रियलिटी में उसका सबूत दिखेगा, यू विल सी द एविडेंस ऑफ दैट कि I was thinking about this and this happened. I was thinking about something and this happened. I wanted to read this book and I got this as a gift. अब मुझे गिफ्ट दे दी, और मैं बहुत टाइम से अगर सोच रही थी कि मुझे ये वाली किताब पढ़नी है, मुझे पढ़नी है, मुझे पढ़नी है, बट इट जस्ट दैट मैं एक बार गई शायद WH Smith या क्रॉसवर्ड पे, मुझे वहां पे नहीं मिली, बट मुझे गिफ्ट में वही किताब मिल गई। राइट, सो इट वॉज सो अमेजिंग। इट इट एक्चुअली बहुत सरल तरीके से होती है। मैंने वो दीपा गुप्ता को बताया नहीं था, बट yesterday when like मैं जब so we do a lot of diet consultancies, right? So I had given that broccoli soup to somebody because मुझे लगा उनको बहुत जरूरत थी उस चीज की, बिकॉज उनकी बॉडी भी हील कर रही थी। तो मैंने ऐसी डाइट बना के दी थी जिसमें उनकी जो करंट मेडिकल इशू है वो भी ठीक हो जाए। तो मैंने उनको ऐसे ही कहा कि आपके शहर में मतलब ब्रोकली बहुत आराम से मिल जाएगा, ब्रोकली एंड केल या केल स्पिनच ऐसे। तो उन्होंने कहा हाँ, स्पिनच एंड ब्रोकली तो बहुत ज्यादा मिलता है। मैंने कहा सो जस्ट मेक अ सूप आउट ऑफ दैट एंड यू ड्रिंक इट, एंड लाइक हैव इट विद सम सैलेड। ज्यादा हैवी मत खाना आज, बिकॉज बॉडी रिकवर कर रही है। एंड देयर इट गोज, एंड आई सी दीपा गुप्ता, शी हैड स्विगीड अ ब्रोकली सूप विद स्पिनच टू माई हाउस, है ना, manifested था। So I was telling Deepak when he came back from office, I said, see, this is like, I already have a broccoli soup and a spinach soup. So it was so manifested because मैंने उसको बहुत एयर टाइम दिया था जब मैं वो समझा रही थी ना उनको, डाइट जब समझा रही थी। So we always explain the diet to all our clients, and that this is we are giving, why we are giving, how will it affect their body, all that we tell. सो उसी उस तरह से मैनिफेस्ट हुआ। सो यू सी, जब आप बहुत अच्छी एनर्जी देते हो, है ना, तो वो चीज मेरे घर में आ गई, और मैंने कल डिनर में वही पिया, ब्रोकली एंड केल सूप ही पिया है। That is what I had for my dinner, but I could have it around 8 o'clock because I was busy with work. And so it was so beautiful like that, है ना। तो आप देखोगे यूनिवर्स, आप किसी भी चीज को बहुत प्यार वाली एनर्जी देते हो ना, बहुत प्यार देते हो, बहुत अच्छे एसेंस में सोचते हो, वो बड़ी बड़ी चीजें भी हो सकती है। जैसे मनी को आप बहुत अच्छी एनर्जी देते हो, आप देखना कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी जिंदगी में आ जाएगा। दैट मीन्स आपने उस आइस को स्टीम बना दिया है ना, दैट इज व्हाट इट मीन्स। या, यू कैन कंटिन्यू रीडिंग एग्जाम्पल के साथ। Yes. For example, in assessing a scenario involving a group of people in a certain emotional dynamic, in an instant you can know what's going on. You don't have to figure it out or think it through. In an instant, you know what's happening. So you can move on to the solution. You ask yourself, how should I behave right now to most positively accommodate the dynamics among these people? And you know the answer. So you learn super fast, you act super fast, and in empowering and beneficial ways, you actually become intelligent, as we humans are supposed to be. You become less and less like a sheep and more like a lion, an intelligent lion. You are no longer helpless, you are actually creating, being of benefit to yourself and everyone else. You are no longer reacting unconsciously, being slapped around by your thoughts and emotions, not knowing who you are or what you are here for, and therefore sending out to the universe all kinds of mixed ideas and frequencies. This is all fine and perfect, of course, and there's no blame or judgment. But it is helpful to observe and become aware of your unconscious behavior, to let it motivate you to stay no to that mode of being.
या सो थैंक यू रेखा, दिस इज ऑल विल बी रीडिंग टुडे। वैसे भी अब से दूसरा टॉपिक थोड़ा शुरू हो रहा है। थैंक यू सो मच, यू हैव अ ब्यूटिफुल वॉइस एंड यू रेड सो ब्यूटिफुली। फिल इन योर नेम अगेन। Thank you so much, ma'am. Have a magical day, everyone. Yeah, thank you so much. Today, everybody indeed has to have a magical day. इनकी प्रैक्टिस से कि आज तो चॉइस ही नहीं है। थैंक यू सो मच। सो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है जो हमने अभी अभी पढ़ा है। एक एक लाइन इसकी बहुत पेनिट्रेटिव है। पहली लाइन, सो यू लर्न सुपर फास्ट, यू एक्ट सुपर फास्ट एंड इन एम्पावरिंग एंड बेनिफिशियल वेज। राइट, तो हम अपने क्रिएशन का प्रोसेस जो अभी धक्के मार मार के पूरी जिंदगी चाहते थे हम कुछ, बट इट वॉज नॉट हैपनिंग। राइट, बिकॉज वी डिंट नो दैट पास्ट को पहले इजेक्ट करो, उसके बाद एक जगह बैठो, फिर उसके बाद आप वो वाला मेंटल मूवी कैनवस जो खाली कैनवस है उसके ऊपर अपना फ्यूचर प्रेजेंस जो आपके बर्निंग डिजायर्स है, जिस तरह की आपको जिंदगी चाहिए एक साल के बाद, आप उसको पेंट करो और फिर उसमें इमोशंस ऐड करो that you're doing this, you're doing that, and it is so much fun, you're looking so fit, आपकी हेल्थ इतनी अच्छी है, आपके पास इतना पैसा, इतना abundance है, आपने अपना घर खरीद लिया, आप you're surrounded with people who you love and you're enjoying, you're traveling, या जो भी है ना, जो भी आपका प्रेफरेंस, आपका बिजनेस हैज सोड हाई एंड हाई एंड हाई, और कहाँ कहाँ से रिटर्न्स आ रहे हैं, एंड यू आर टॉकिंग टू द सीए दैट व्हाट टू डू अबाउट द मनी बिकॉज इतना सारा पैसा आया है, या जो भी आपको करना है, ये आपकी प्रिफर्ड रियलिटी है, मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। सो दिस इज डेफिनेटली वेरी एम्पावरिंग एंड बेनिफिशियल टू अस, है ना। सो वो बोल रहे हैं उसके बाद सेकेंड लाइन में, यू एक्चुअली बिकम इंटेलिजेंट एज वी ह्यूमंस आर सपोज टू बी। अभी तक हम इंटेलिजेंट बन के कहाँ रह रहे थे, हम तो विक्टिम बन के रह रहे थे, उसने मेरे ऐसे कर दिया, उसका बिहेवियर ऐसा है, मतलब बहुत ज्यादा पैसे की कमी है, माई हेल्थ इज लाइक दैट। अरे तो क्रिएट गुड हेल्थ ना, दैट इज व्हाट इज इंटेलिजेंस का मतलब। ये है दैट अपनी क्रिएटरशिप, अपने गॉडली नेचर को हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। राइट, तो यही बोल रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस यही होती है, दैट ह्यूमन इंटेलिजेंस इज क्रिएटरशिप। क्रिएट करो अपनी जिंदगी। अब वो बता तो रहे हैं कैसे करना, है ना। फिर वो नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं, यू बिकम लेस एंड लेस लाइक अ शीप एंड मोर लाइक अ लायन। लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। तो आप किसी के विक्टिम बन के नहीं घूम रहे हो शीप की तरह, शीप को सब अटैक करते हैं, है ना। लायन को कोई अटैक नहीं करता है, मतलब लायन इज वेरी सपोज टू बी वेरी पावरफुल। So that way. So you become less and less like a sheep, less like a victim, and more like a lion, an intelligent lion. You are no longer helpless. You are actually creating, being of benefit to yourself and everyone else, है ना। क्रिएशन तो हम ऐसे ही करते हैं ना, जो हमारे लिए भी अच्छा है, जो सबके लिए अच्छा है। अगर आप बिजनेस अपना बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए या कोई एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, अगर आप वो विजुलाइज कर रहे हो कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और आप कितने ज्यादा, तो वो ऑब्वियसली अकेले आइसोलेशन में थोड़ी काम करेंगे, है ना। बहुत लोगों की जिंदगियां, अगर आप स्कूल टीचर की जॉब चाहते हो, आप प्रोफेसर की जॉब चाहते हो, आप प्रमोशन चाह रहे हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, तो जो आपका वर्क प्रोफाइल है उसमें आप लोगों को भी तो बेनिफिट कर रहे हो ना कहीं से तो कंपनी के क्लाइंट्स होंगे, कुछ होगा। सो यू आर डूइंग गुड टू योर सेल्फ एंड एवरीवन एल्स। यू आर नो लॉन्गर रिएक्टिंग अनकॉन्शियसली, जैसे पहले हम करते थे ना, किस्मत के भरोसे पत्री ले लेके घूमना, इधर उधर दिखाना, ये मेरा नाम है, ये मेरा नंबर है, ये मेरा वो है, ये मेरा राहु है, मैं केतु है ना। ये हमने किया है बहुत ज्यादा, गए ना अपने कुछ कुछ दिखाने के लिए कि कुछ करके क्या मेरी किस्मत बदल सकती है। ओके, बट नहीं, इसी नाम से किस्मत बदल सकती है। मेरी बदली है, आपकी बदली है ना। ना तो हमको नाम चेंज करने की जरूरत पड़ी, ना हमको रोज सुबह जाके गाय को रोटी खिलाने की जरूरत पड़ी, ना हमें काले कुत्ते को कुछ देने की जरूरत पड़ी। दिस इज व्हाट द पंडित से, दैट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स। आप देखना, आप मूंग की दाल को पीपल के पेड़ के नीचे रखो तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। नहीं, आपको मूंग की दाल बनानी है, आप बड़े बोल में डब्बे में बनाओ और जाके किसी रिक्शे वाले को दे के आओ कि गरम गरम खाना है, आप खा लेना, इंस्टेड ऑफ पीपल के पेड़ के नीचे रखना, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। बट यह अक्ल हमें अब आई है, पहले नहीं थी। ठीक है, पहले हम एक्चुअली अपने हॉरोस्कोप के विक्टिम थे। तो ये वो यहाँ पे बहुत क्लियरली बता रहे हैं दैट नाउ यू आर नॉट जस्ट बिहेविंग लाइक अ विक्टिम की अनकॉन्शियस थॉट्स बिना इंटेंशन के आप जा रहे हैं। नाउ
So he's saying being slapped, we are not being slapped by our thoughts and emotions, है ना, negative जो जो आते जा रहे हैं unconsciously, not knowing who you are, not knowing why you are here, and therefore sending out all sorts of negative ideas and frequencies to the universe, that मेरे पति का बिहेवियर ऐसा है, मेरे साथ ये है, लाइक डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि मुझे जिंदगी भर थायराइड बहुत बिगड़ता जा रहा है, लेवल बढ़ता जा रहा है, मुझे ऐसा हो जाएगा, मेरी डायबिटीज ठीक नहीं होगी, मुझे इंसुलिन हमेशा लेना पड़ेगा, मुझे। अभी तक हम ऐसे ही रह रहे थे ना, बट कह रहे नो, इट इज टाइम टू बिकम इंटेलिजेंट। सो नाउ वी विल गेट एन इंटेंशन ऑफ व्हाट वी वांट टू क्रिएट, लाइक बीइंग दैट वी आर गॉड। तो उन्होंने ये यही बोला इसमें, दैट ठीक है, अगर वैसा भी करते थे इट्स ऑल फाइन एंड परफेक्ट, है ना, कभी रिग्रेट के साथ पास्ट को देखना नहीं चाहिए, कभी भी रिग्रेट के साथ, क्योंकि वो पास्ट वो सब हमने किया है, तभी तो हम आज यहाँ लैंड हुए हैं। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो या आप यूट्यूब पे सुन रहे हो या बाद में सुनोगे, इट्स ओनली बिकॉज यू हैव रीच दैट लेवल ऑफ द कर्मा जहां पे आपकी किस्मत बदलने का टाइम आ गया है ना। तो आपने वो जो एंड्योरेंस किया था, लेकिन अंदर से एक फायर थी आपके अंदर, दैट लुक आई एम गोइंग टू मेक इट बिग इन माई लाइफ एंड आई विल चेंज ऑल दिस एंड लीड द लाइफ ऑफ माई ड्रीम। मैं अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहता हूँ, और ये है, और बहुत हो गया, एंड दिस इज, आई वांट टू एंजॉय, आई वांट टू लर्न हाउ टू क्रिएट, आई वांट टू लर्न क्वांटम फिजिक्स। तब आप यहाँ पे लैंड करोगे, है ना। जैसे किस्मत नहीं बदलने का टाइम आता है तो थोड़ा सा आप आओगे, फिर आप एक महीने नहीं आ पाओगे, फिर आपके अंदर डाउट आने लग जाएंगे, जो कहते हैं ना अंदर का डेविल बात करता है। जब भी एंजल अपने अपनी, व्हेन एंजल ट्राइज टू रोर इन योर लाइफ फ्रॉम योर, कहते हैं हर इंसान के अंदर एक डेविल, एक एंजल होता है। जब वो एंजल जैसे एम्पावर्ड होता है ना, और उसके उसके हाथ में फ्लैग आ जाता है दैट यस आई एम गोइंग टू टेक दिस लाइफ फॉरवर्ड और मेक इट वेरी ब्यूटीफुल, वो डेविल फट से कहता है चुप, और उसको खींच के वापस नीचे कर देता है। जिसका मतलब होता है आपके अंदर डाउट आएंगे, आपको लेजीनेस आएगी, आपको कुछ ऐसा होगा कि आप वो वाला काम नहीं कर पाओगे, है ना। बिकॉज हमारे अंदर हम किस चीज को फ्यूल देते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। डेविल को ज्यादा हम फ्यूल दे रहे हैं कि अपने अंदर के एंजल जो बैठा हुआ है उसको ज्यादा फ्यूल दे रहे हैं। तो डेविल हमेशा जीतने की कोशिश करता है, बिकॉज वो बहुत सालों से बैठा हुआ है हमारे अंदर, और एंजल को आपने अभी अभी बैठाया है, तो वो कहता है चुप चुप करके बैठ जाओ, आई विल विन, बट लेट द एंजल विन ऑलवेज। तो ये डेविल विन करता है, तो आपको डाउट आएगा, आप एक महीने गायब हो जाओगे, आपको फिर वापस से विक्टिम ऑफ एनवायरनमेंट बन जाओगे, फिर आपकी नींद नहीं खुलेगी, फिर आपके रात में इतना लेट होना शुरू हो जाएगा। ऑल दैट इज डेविल वर्किंग, जिसको बुद्धिज्म में बोलते हैं ना 3 ऑब्स्टिकल्स एंड 4 डेविल्स। सो वो अंदर से ही आते हैं, अंदर से ही क्रिएट होते हैं, हमारे अंदर से, बाहर का कोई वो नहीं होता। हाँ, बाहर वो डेविल किसी टूल को लेके आ जाएगा, आपके एनवायरनमेंट में किसी पर्सन को लेके आ जाए कि मेक मेक दिस पर्सन लाइफ मिजरेबल, वी डोंट वांट हिम और हर टू विन। बट देन यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट वो पैटर्न ब्रेक करना जरूरी है। और जैसे फ्लोरेंस कॉबल्शिन ने हमको बोला था दैट एवरी पर्सन कमिंग टू माई लाइफ इज माई चेन ऑफ गुड, इज माई चेन ऑफ गुड। ओके, मतलब वो कड़ी है, एक मेरी गुड की श्रृंखला की एक कड़ी है, हर इंसान मेरी श्रृंखला की कड़ी है। तो आप देखोगे जब आपका थॉट प्रोसेस ऐसा हो जाता है, मेरा तो हो गया है, मेरा थॉट प्रोसेस ऐसे हो गया है दैट एवरी पर्सन इज अ चेन ऑफ गुड। वो मुझे सिखा रहा है, जैसे मैं ब्लाइंड भरोसा लोगों पे करती थी, आई कुड नॉट से नो टू पीपल, सो आई हैव लर्नड ऑल दैट, है ना। आई वॉज वेरी वल्नरेबल, वो सारे स्मॉल टाउन के जो वो हैबिट्स होते हैं, दैट आप डरे सहमे लल्लू की तरह रहते हो शुरू में, एंड देन ऑफ कोर्स यू रियलाइज दैट दिस इज, देन यू बिकम स्मार्टर एंड स्मार्टर एंड स्मार्टर, देन यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। तो ये प्रोसेस होता है, राइट। तो वो प्रोसेस में बहुत सारी ऐसी चीजें आई। सो टुडे आई कैन से नो टू पीपल इफ आई डोंट फील लाइक डूइंग इट। आई नो whom टू चूज इन माई लाइफ, आई नो whom टू गिव मोर टाइम, बात किन से करनी है, किन के साथ ज्यादा समय बिताना है, कैसे सोचना है, ये सब अब जाके आया है, इस उम्र में जाके। बट इट्स ओके, तो हम रिग्रेट के साथ तो पीछे जिंदगी नहीं देख रहे हैं, हम बहुत एम्पावरमेंट के साथ, लाइक अ लायन, राइट, दैट वी डोंट वांट टू लिव द लाइफ ऑफ अ शीप। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है that and like you have to, जो अनकॉन्शियस हमारा बिहेवियर था जिसके कारण अभी तक हमारी जिंदगी में चीजें हो रही थी, उस अनकॉन्शियस बिहेवियर ने ही हमको आज की तारीख में ये सिखाया है that you are motivated to say no to things, to that mode of being। जो लास्ट लाइन है इस वाले पैराग्राफ की, एक एक लाइन, आई नो दैट टाइम ओवरशूट हो रहा है एंड ऑल दैट, बट इस वाले पैराग्राफ की एक एक, मैंने सिर्फ यहां से ये चीजें उठाई है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं समझाया है ना, सिर्फ इस वाले पैराग्राफ में से चीजें समझाई है। दैट
ही सेज दैट अगर पास्ट में ऐसा हुआ भी था, दिस इज ऑल फाइन एंड परफेक्ट ऑफ कोर्स, एंड देयर इज नो ब्लेम और जजमेंट, इट्स ओके, है ना, जो इंसान आया था वो हमको ग्रो ही करने आया होगा। बट इट इज हेल्पफुल टू ऑब्जर्व, लेकिन आज की तारीख में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, और आप अवेयर हो गए हो अपने अनकॉन्शियस बिहेवियर, आपको लग रहा है अरे ये तो आई एम गोइंग इन टू द माई विक्टिम हुड अगैन, मैंने तो अपना क्रिएशन का प्रोसेस, मुझे क्रिएट करना है, आई कैन चेंज दिस सिचुएशन, आई कैन थिंक द अदर थॉट्स, सो आप रियलाइज करते हो अपने अनकॉन्शियस बिहेवियर की थिंकिंग को, कि हमेशा से मैंने ये सोचा है कि ये इंसान मेरा ध्यान नहीं रखता, केयर नहीं करता, पैसे नहीं देता, बट नो, डजेंट मैटर, आई विल चेंज माई थॉट एंड आई विल चेंज इट। अगर मुझे मन में सोचने में नहीं आएगा तो मैं लिख लिख के बोलूंगी, बट मैं ऑपोजिट थॉट बोलूंगी, दैट दिस पर्सन रियली केयर्स एंड लुक्स आफ्टर मी सो वेल, सैचुरेट्स माई लाइफ विथ लव एंड गिव मी ऑल द मनी दैट आई रिक्वायर, एंड दिस पर्सन इज थ्राइविंग एंड फ्लरिशिंग। ऐसी चीजें आप लिखने लग जाओ। या अगर हेल्थ में कोई चैलेंज था, अनकॉन्शियसली आपको बार बार वही चीज दिमाग में आ रही थी, दैट मेरी हेल्थ में ये हो रहा है, मेरी हेल्थ में मुझे डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि देखो इससे करके देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर ऐसा करना, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में वो कीड़ा डॉक्टर ने डाल दिया, है ना, अब अनकॉन्शियस थिंकिंग आपकी बार बार रिपीटेडली लूप पे चल रही है कि ये दवा काम नहीं करेगी। मेंटली आप अपने आप को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करने शुरू हो जाते हो, है ना, उसको बोलते हैं लिविंग लाइक अ शीप, अनकॉन्शियस दिस थिंग, क्योंकि इमोशन से उनके कारण आप बहुत ओवरवेलम हो गए हो, तो आपको बहुत बुरा लग रहा है कि अच्छा ये दवा काम नहीं करेगी तो मेरा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। बट यू आर फॉरगेटिंग दैट यू आर गॉड, यू कैन क्रिएट दैट इंस्टेंस वेर यू आर हीलिंग। कहते हैं ना, जैसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जिस भगवान ने आपको बनाया है उनको आपको रिपेयर करना भी बहुत अच्छे से आता है ना, तो इसीलिए डिविनिटी का सहारा लेना बहुत जरूरी है। डिविनिटी कहाँ है? हमारे अंदर है। यू आर गॉड का मतलब है यू आर डिवाइन, राइट? सो इस तरह का अनकॉन्शियस बिहेवियर को आप डिटेक्ट कर लो, एंड देन टू लेट इट मोटिवेट यू टू से नो टू दैट मोड ऑफ बीइंग, you have to say no, I will not let that sheep in me win. I want to let the lion in me win. So you have to learn to say no to that unconscious behavior जो अभी तक आपका चल रहा था। तो ये last paragraph was so super important for us to understand the facts of life, right? So sorry about shooting it up late today.